wicket on the very first delivery. None for one, trying to accelerate from the ball one. And Salil Naik just spooned one up in the air. Easy catch for Suhas Pawar in his own follow through. Hasapur took on Dhargar in that eliminator 1. Hasapur winning that game. And now into the eliminator 2. Team winning will be meeting Ozrim in that semi-final 2. Nicely bowled, nicely played as well with soft hands. A bit of misfield by both those fielders. But we'll get around just one. Dheeraj Paliyekar scoring earlier. Now we'll be having a breather as Triveni Sawant has joined us. That's left alone. That will be a dot. Excellent delivery. Bowling it outside the off stump, and the left armour is using his angle to good effect. Officials in the middle, Siddesh Sharmalkar and Sushant Salgaonkar, both very experienced umpires. Down on one knee, trying to slog it on to the onside. Missed out. Dot delivery again. Triveni Sawant with the manual scoring, and Ajit Achrekar with the digital. All these games live on YouTube through tenniscricket.in. Reverse sweep, and that reverse has landed on the street. Huge hit from Prathamesh Thakre. Score moves on to 7 with that maximum. Doesn't require any second invitation and knows exactly what he's capable of times. That's nicely played. Picked up early, and that's all the way for 6, a maximum. Score moves on to 15 with that 6. Just in length, maybe trying to follow the batsman to the stumps. Again, picked up early, and that will be one bounce over the ropes for 4. Vacant spaces on the onside, and Prathamesh just clips it for a boundary. Bhattu, me, Rupesh, and also Dheeraj can do that. Ask about Damba, he can't pass through. 10 of 2 deliveries. Nicely bowled that time. Straight to Bhattu. Will be a dot. Excellent delivery, dot ball. One delivery remaining as the first one was a wide. 19 on the scorecard. Swing and a miss. Dot delivery to end the over. 11 runs coming from it after completion of the second. It's 19 for 1. 19 for 1 after completion of 2 overs. HYS Warriors Hasapur.
opting for the through over. All the fielders inside the 30-yard ring. Opportunity for Sahil and his partner Prathamesh to go after the bowling and to get some quick runs in this over. 19 for the loss of 1 after 2 overs. Yes, Prathamesh Thakre. Prathamesh Thakre at the other end, and Suhas Pawar. That's very well bowled and very well fielded as well by that young man, Abhi. Dot delivery. Looking to switch. Maybe square leg could be a better option. Again missed out. Again dot delivery. Three brothers in the same team. All the three Maliks. This time he goes. And he goes long onto the stand for a maximum. .25 on the scorecard. 3 deliveries in. Again. This time fielder backpedaling. And that will be a couple. 2 more unsadded. Bablu trying to go back. And way ahead of him. Score moves on to 27. This being the third over in progress. This is the through over for the HYS Warriors Hosapur. Reverse. Missed out. And the entire dugout has gone crazy with that reverse sweep attempted. There he goes again. And that will be clearing, I suppose. Yes, indeed. A maximum. 620 over after completion of 3. It's 33. 33 for the loss after completion of 3 overs. Going at 11. HYS Warriors Hosapur. Change in bowling. It will be Bhattu. Lakshman Naik from the far end. That's big. That is humongous. Straight over the bowler's head. And that's a no ball as well. Well. This man is completely powering the HYS towards a big total. Score moves to 40. Free hit delivery. Goes again. Goes over. And Damba will have to duck. That's yet another maximum. Score moves to 46.
DJ is searching for his songs. Score moves on to 46. 2 deliveries, 2 maximums. Prathamesh Thakre just lining him up. Man from sweeper cover comes in. Full toss. And that full toss has gone many a miles. Huge hit. Another 6. Another no ball. 3 in a row now. Score moves on to 53. With that 6, this will be another free hit. 3 maximums. 1 over long on. Next one over long off. Third one disappeared over the backward square leg. 3 in a row. Another free hit coming. And this time he tried for it, but will pick up 2 more. By the time Shubham Chandroji picks it up and throws it back, 2 more runs added. Score moves to 55. I'll take you back to Ranchi. A man from London arrived a few days back. Got driven by MSD a few nights back, and now batting on 99. Played it down the ground on the bounce. Will get a single. Score moves on to 56. So far this over has produced lot many runs. Sahil on strike. 56 on the scorecard. Reverse. And that reverse might just go into the hands. No. 1 bounce into the fence for 4. Score moves to 60 with that boundary. Well, these two are certainly cutting loose right now. Maybe a message has come from the dressing room that why don't you try and get some runs in this over. Another 2 deliveries remaining in this over. Reverse again, missed out this time. Dot delivery. As I was talking about earlier, India playing against South Africa. 4 currently India in 37 overs. Virat Kohli batting on 99. Swing, missed. Dot delivery. Dot delivery to end the over. At the halfway stage, HYS Warriors, who are put into bet by the giant fighters Agarwada, 60 for the loss of 1 wicket. 60 for 1. Prathamesh Thakre and Sahil Malik batting really well. 4 overs done. 27 came from that last over of Lakshman Naik with 2 no balls in that. Change in voice. It will be Ashok Naik sir with you in the com box for the next 4. खेल समाप्त हुआ। पहला विकेट बहुत जल्द गिरा 0 पर। सलील नाइक एकत राजा और मुन्ना पिछले मैच में धुआंधार बल्लेबाजी की थी, लेकिन उसके बाद साहिल मलिक आ चुके हैं और उन्होंने अपने टीम को संभाला।
प्रथमेश ठाकरे गेंदबाजी में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से अमीर गड़ेकर आ चुके हैं। खुद का दूसरा, पहले ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी पावर प्ले में, अब खुद का दूसरा ओवर और टीम का 5वां ओवर लेकर शफल होकर खेलना चाहते थे। गेंद थोड़ी सी बल्ले पे लगी, पैरों पे लगी, विकेट कीपर आते, सुहास पवार गेंद को उठाते, फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पहले ओवर में एक मौका निकला था बबलू के लिए, महादेव के लिए कैच का, लेकिन लगभग पहुंच नहीं पाए गेंद के नीचे। अच्छी गेंद इस बार ढीले हाथों से खेला, मिड ऑफ पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, तब तक एक सिंगल। 61 पर पहुंचा टोटल स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस बार बल्ले का भीतरी किनारा, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा और सफलता मिलती हुई जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा क्रिकेट टीम को दूसरा विकेट चला गया। 61 लॉस ऑफ 2 विकेट। डीजे गेंदों में 2 छक्के 1 चौका, 19 रन, शानदार साझेदारी बनाई, क्योंकि पहला विकेट बहुत जल्द खो चुकी थी पहले ही ओवर में, तब वही से लेकर कहीं ना कहीं अपने टीम को संभाला प्रथमेश ठाकरे के साथ, और अब कप्तान आ चुके हैं मैदान पर। 4 ओवर में आपने 60 रन बनाए हैं, तो आने वाले 4 ओवर में आपको कम से कम 50 रन तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले 4 ओवर में 60 बन चुके हैं, तो बाद में 4 ओवर में 50 बनाने पड़ेंगे। 100 से आगे निकलना पड़ेगा इस मैच में, क्योंकि जिस तरह से आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन सामने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी है। सुहास पवार ने शानदार स्पेल किया, और अमीर गड़ेकर जो बिल्कुल एक बहुत ही शानदार गेंदबाज है, अपने बॉलिंग बार पर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अमीर गड़ेकर, गेंदों को ज्यादा घुमा रहे हैं। स्वप्निल मलिक उर्फ बाबा स्ट्राइक पर, टीम के कप्तान, विकेट कीपर, बैटर। बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक बार अच्छी लाइन पर ऑफ स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, विकेट कीपर के हाथों में। ऑफ साइड पर एक कवर पॉइंट पर बाउंड्री पर फील्डर है, एक लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में लगभग वाइडिश लॉन्ग ऑफ, ऑन साइड पर एक डीप लॉन्ग ऑन, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट। एक बार एक लोअर फुल टॉस, अच्छा शॉट, गैप में देखना होगा, लंबी दौड़ लगाई, गेंद से दूर और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। के साथ और स्कोर को आगे बढ़ाया 65 पर 2 विकेट पर। अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, डीप लॉन्ग ऑन पर फील्डर दूसरे के लिए पलटे, देखना होगा, ओहो बिल्कुल गेंद को सफाई के साथ उठा नहीं पाए। अगर सफाई के साथ फील्ड करते, थ्रो करते तो शायद खतरा भी बन सकता था। फिलहाल अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, 6 पर खुद के जो कि स्वप्निल मलिक। ओवर की समाप्ति हुई 5वें और टोटल स्कोर 67, 67 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 10वां पर्व पेडने प्रीमियर लीग पावर्ड बाय गोमलचल डेयरी। शानदार क्रिकेट, आज दिन रात का सफर इस मैदान पर, और फिलहाल देखना होगा कि इस मुकाबले में जो पहले बल्लेबाजी को मौका मिल चुका है, कितने रन बना लेती है HYS हसापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम। आज इससे पहले मैच में एक बड़ा टोटल खड़ा कर दिया था,
और इस मैच में अब तक की अगर बात की जाए तो सही चल रही है बिल्कुल हसापुर क्रिकेट टीम, अच्छा स्कोर बना रही है। आने वाले 3 ओवर मैच में कमबैक करना पड़ेगा जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा क्रिकेट टीम को, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी है, अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी आने वाले 3 ओवर में। एक कम से कम जो कि 90 के आसपास, अगर 195 के आसपास अगर रोकने में सफल रही तो मजा आ सकता है, मुकाबला हो सकता है। फिलहाल चर्चा हुई छोटी सी टीम मीटिंग और उनके बाद चर्चा के बाद बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं लक्ष्मण नाइक। विश्वास बिल्कुल जताया कप्तान ने, टीम ने, क्यों न हो पिछला ओवर महंगा हो, आप इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, ये विश्वास जताया गेंदबाज पर। और अपने बॉलिंग मार्ग पर दूसरा खुद का ओवर लेकर लक्ष्मण नाइक सामने स्ट्राइक पर है प्रथमेश ठाकरे। अच्छी गेंद इस बार, अच्छा शॉट कवर पर, देखना होगा फील्डर है दूर, एक सिंगल के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, और जब तक थ्रो पहुंचता गेंदबाज के हाथों में विकेटों के बीच में शानदार दो रन बन गए स्कोर के खाते में, और 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 69 रन पर 69, 2 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस, एक लेफ्टेड शॉट, गैप में गेंद, वाइड स्लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से गेंद चली गई 6 रन के लिए। अर्धशतक से अच्छी गेंद खेला इस बार कवर की तरफ, शॉर्ट कवर पर फील्डर है मौजूद, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा 76, खुद के व्यक्तिगत 48, 48 रन पर प्रथमेश ठाकरे, सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज है स्वप्निल मलिक, और दूर वाले छोर से गेंदबाजी पर लक्ष्मण नाइक अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा शॉट, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन पर फील्डर सीधे हाथों में, और गैप में खेलने में असफल रहे। तीसरा विकेट चला गया HYS आशापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम का। एक अच्छी सफलता मिलती हुई जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा क्रिकेट टीम को, टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला। प्रथमेश ठाकरे शानदार बल्लेबाजी कर रहे, खुद के व्यक्तिगत 48 रन पर 2 रन जो कि पीछे है अर्धशतक से। आज सुबह के 17 में भूषण घोड़े ने शानदार अर्धशतक, और देखना होगा फिलहाल आने वाली गेंद पर अंपायर से गार्ड लेते हुए स्नेहल मलिक सामना करेंगे लक्ष्मण नाइक की गेंदबाजी का। आते आते एक करारा शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। पर 3 विकेट के नुकसान पर
ये बहुत अच्छी गेंद, बल्ले का भीतरी किनारा, अच्छा कैच पकड़ा विकेट कीपर सुहास पवार ने, सफलता मिलती हुई इस ओवर में। और एक पिछले ओवर में महंगे रहे थे, 27 रन बने थे, लेकिन कप्तान ने विश्वास जताया और उस विश्वास पे मैं कहूंगा खरे उतरे। इस ओवर में लक्ष्मण नाइक 2 छक्के जरूर लगे, लेकिन 2 विकेट भी चटकाए अपने टीम के लिए। खेल जो कि समाप्त होता हुआ 6 ओवर का, और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 82, लॉस ऑफ 4 विकेट, 82 रन 4 विकेट पर। राजू केरकर अपने बॉलिंग बार पर 7वें ओवर की शुरुआत होती हुई। इस बार हवा में मार बैठे, देखना होगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और इसी के साथ प्रथमेश ठाकरे के 21 गेंदों में 50 रन पूरे होते हुए। शानदार बल्लेबाजी, 21 गेंदों में 50 रन। राजू केरकर अपने बॉलिंग बार पर। फुल टॉस, एक मिस टाइम शॉट, मौका बनेगा। ओहो, ठीक से अंदाज नहीं लगा सके, एक सिंगल दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। इस बार जो कि देखना होगा 2 रन बन गए स्कोर के खाते में। तो हमारे स्कोरर जानकारी देते हुए टोटल स्कोर हो चुका है 90 रन 4 विकेट पर। और पीपीएल में इस 10वें पर्व में अब तक अगर व्यक्तिगत बल्लेबाज की मैं बात करूंगा, सबसे ज्यादा रन बनाया है वो है प्रथमेश ठाकरे ने, 212 रन। 212 रन अब तक बनाया है पूरे प्रतियोगिता में, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये बल्लेबाज। गेंद वापस आ चुकी है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलीकॉप्टर उड़ाया, ओहो, शानदार कोशिश की थी, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई 6 रन के लिए। रही थी एक शानदार शॉट, मिली हेलीकॉप्टर और गेंद 6 रन के लिए। अच्छी गेंद, आगे निकल कर गेंद को ड्राइव किया, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए कोशिश जरूर देखने को मिल रही, थोड़ा सा ढिलाई दिखाई दी थी स्ट्राइक पर बल्लेबाज ने संदेश ठाकुर, लेकिन आखिरकार पहुंच गए। 2 रन बन गए स्कोर के खाते में, और इन 2 रन के साथ 98 टोटल स्कोर। 7वां ओवर जारी है, आने वाला 1 ओवर बाकी है। एक मिस टाइम शॉट विकेट कीपर, और इस बार कैच को पकड़ा। सफलता मिलती हुई सुशांत ओवर पर राजू केरकर को। शानदार बल्लेबाजी प्रथमेश ठाकरे की, कितने गेंदों का सामना किया, कितने चौके छक्के लगाए, जरूर जानकारी आपके लिए हम जरूर देंगे। जो 25 गेंदों का सामना किया, 1 चौका लगाया, 8 छक्के लगाए, 64 रन बनाए। जरा जोरदार तालियां प्रथमेश के लिए। 25 गेंदों में 1 चौका, 8 छक्के,
64 रन बनाए अपने टीम के लिए। एक शानदार पारी और सफलता मिलती हुई जायंट फाइटर आगरवाड़ा क्रिकेट टीम को, और संदेश ठाकुर का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर। मनोज तांडेल डीजे। पचास रन होने चाहिए। फुल टॉस गेंद के लिए और फुल टॉस ऑफ साइड पर खेला, गेंद को ऑन साइड पर, काउ कॉर्नर पर, फील्डर पहले, ओहो, अब मात्र ट्रेन बोगदे में से बिल्कुल निकल गई और गेंद चली गई लॉन्ग ऑन, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 4 रन के लिए टोटल। और इसी के साथ HYS आशापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम के 100 रन पूरे हुए। 102 102 रन। 5 विकेट के नुकसान पर पहला विकेट शून्य पर, नाजुक शुरुआत, 61 रन की साझेदारी बनी दूसरे विकेट के बीच में कप्तान, और उसके बाद आगे जो कि, लेकिन वही से लेकर आगे निकले बिल्कुल एक अच्छा टोटल जो कि बनाते हुए। लास्ट ओवर, आखिरी ओवर, और बॉलिंग मार्ग पर अभिषेक दामाजी आ चुके बॉलिंग मार्ग पर। अच्छा शॉट इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट पर, डीप पर, फील्डर है, पहले रन के लिए निकले, क्या दूसरा रन बनेगा? जी नहीं, बहुत अच्छी फील्डिंग, एक ही रन बन गया स्कोर के खाते में, और इस सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 103, 103 रन। अंतिम ओवर का खेल बाकी है मैच का, और देखना होगा कितने रन बना लेती है HYS आशापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम। जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा क्रिकेट टीम बल्लेबाजी है, और पिछला मैच उन्होंने भी देखा होगा इस विकेट पर किस तरह से बल्लेबाजी की थी प्रीतिका वॉरियर धारगढ़ क्रिकेट टीम ने। फुल टॉस ऑन साइड पर, मिड विकेट पर, फील्डर, ओहो, गेंद चली गई 4 रन के लिए। 4 रन के लिए ताकत थी शॉट में, और मिले 4 रन स्कोर के खाते में। डीजे रन बन गए स्कोर के खाते में। अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर है मौजूद, एक सिंगल, और एक ही रन बनता हुआ स्कोर के खाते में। 108, 108 रन 5 विकेट के नुकसान पर, एक अच्छा टोटल, बड़ा टोटल। लेकिन मैं जरूर कहूंगा जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा, आपने पिछला मैच देखा होगा प्रीतिका वॉरियर्स धारगढ़ क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी, अच्छी गेंद सामने, हल्के से गेंद को पुश किया, अपने फॉलो थ्रू में अभिषेक गेंद को उठाते फील्ड करते, क्योंकि पिछले मैच में तगड़ा प्रतिकार किया था प्रीतिका वॉरियर्स धारगढ़ क्रिकेट टीम ने, शानदार बल्लेबाजी की थी। 6 ओवर पर, जब 6 ओवर तक लगभग मैच था हाथों में, 7वां 8वां ओवर फर्क कर गया और वहीं पर मुकाबला हाथों से दूर हो गया। इस बार ऑन साइड पर देखना होगा, फाइन लेग बाउंड्री पर, डीप पर, हाई फील्डर पहले रन के लिए निकले, दूसरे के लिए हाना हाना कर रहे थे, आखिरकार निकले दूसरे रन के लिए। ओ बहुत अच्छा थ्रो, बिल्कुल सर महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में विकेट कीपर ने कमाल की मैदान पर, और सफलता मिलती हुई, और एक विकेट चला गया, छठे विकेट का पतन होता हुआ, और टोटल स्कोर रुका हुआ 109। डीजे
नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर अनिल वडर। लास्ट बॉल टू गो। शानदार बल्लेबाजी रही। 64 रन बनाए प्रथमेश ठाकरे ने, साहिल मलिक ने बनाए 19 रन। और देखना होगा आखिरी गेंद पर क्या होता है, कितने रनों का लक्ष्य रखते हैं जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा क्रिकेट टीम के सामने। अभिषेक अपने बॉलिंग मार्ग पर और सामने न्यू बैटर अनिल वडर। ओ बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हमारे बॉल बॉयज आकाश और पर डंबा दिखाई देते वो गेंद को वापस करते हुए। आखिरी गेंद पर क्या फिनिश किया आते आते बल्लेबाज अनिल ने। और 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 8वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 115, 115 रन, 116 रन मैच को जीतने के लिए। लेकिन बड़े टोटल का मैच है, मैं जरूर कहूंगा बड़े टोटल के मुकाबले बहुत अच्छे होते हैं। और प्रीतिका वॉरियर धारगढ़ क्रिकेट टीम ने जिस तरह से मुकाबला किया HYS आशापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम के साथ, शायद आप भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। दमकम है बल्लेबाजी में और देखना होगा फिलहाल गेंदबाजी किस तरह से होते हैं, बल्लेबाजी कौन से होती है और कौन जीतता है। आइए जैसे दूसरी इनिंग की शुरुआत, एक छोटा सा ब्रेक हमारे संदीप डीजे के साथ और माइक्रोफोन पर आवाज जय भोसले की।
मैदान के अंदर साहिल कामड़ी। दोनों टीमों की अगर बात की जाए, दोनों टीमों के ओपनर में एक खिलाड़ी दोनों टीमों के गोल्डन डक पर शिकार हो चुके हैं। पहले तो सलील नाइक आउट होकर लौटे थे हसापुर के ओर से, और अब प्रजय मलिक आउट होकर वापस निकले। और नए बल्लेबाज साहिल कामड़ी मैदान पर वन डाउन बैटर के हैसियत से सुहास का साथ देने के लिए सामना करेंगे प्रथमेश ठाकरे की अगली गेंद का। पावर प्ले का ये ओवर है। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पे आई नहीं, रन आउट का मौका शायद यहाँ पर चुका। डायरेक्ट हिट होता तो 19-20 का मामला बन सकता, लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी। बल्लेबाज थोड़ा सा बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में था, लेकिन गेंद की लंबाई को थोड़ा सा कम कर दिया था गेंदबाज ने। ओ अच्छी गेंद, बैकफुट से खेला हुआ स्ट्रोक, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं प्रथमेश ठाकरे, पहले बल्लेबाजी और उसके बाद गेंदबाजी। पावर प्ले में आसान नहीं होता, और दूर वाले एंड से तो उतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा उतार है और वहां से खुद को कंट्रोल में रखकर गेंदबाजी करनी पड़ती है। और इस बार बल्ले के बाहरी किनारे को लग गई, फिर एक बार संदेश ठाकुर गेंद को फील्ड करते हैं, और एक बिंदी गेंद समाप्त होते हुए इस ओवर में निकला है सिर्फ एक सिंगल और एक विकेट। बाकी लगातार 3 गेंदें डॉट निकले साहिल के लिए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी प्रथमेश ठाकरे द्वारा मैदान पर। इस बार उठाकर खेला है, सीधा खेला हुआ स्ट्रोक है, खिलाड़ी भाग रहे पीछे, लेकिन गेंद निकली है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। आखिरी गेंद के ऊपर एक शानदार चौका साहिल के बल्ले से निकलता हुआ। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त, और 5 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर 116 रनों के जवाब में। पावर प्ले का दूसरा ओवर डालने के लिए गोवन आइकॉन संदेश ठाकुर, और सामना करने के लिए सुहास पवार स्ट्राइक एंड पर। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर है, देखना यहाँ पर क्या रन की गति बढ़ सकती है और किस तरह से गेंदबाजी होगी मैदान पर। ओ बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, अपील जोरदार करी जा रही है। अंपायर देखना पड़ेगा अंपायर की सहमति है या नहीं। गेंद थोड़ी सी टिप्पा गिरने के बाद निकली विकेट कीपर के हाथों में। अंपायर का कहना जी नहीं, गेंद बल्ले को लगी नहीं है, और बिंदी गेंद समाप्त हो गई है। संदेश ठाकुर बहुत बढ़िया, पूरी तरह से चकमा दे दिया था बल्लेबाज को। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत है। और इस बार उठाकर खेला है लॉन्ग ऑफ कवर के ऊपर से, गेंद निकली है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। अब आगे बढ़ता हुआ 11 रन स्कोरबोर्ड पर। छोटी गेंद, फिर एक बार कवर पॉइंट, डीप पॉइंट के ऊपर से गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बड़े शॉट लगातार 2 गेंदों के ऊपर लगाए हैं सुहास पवार ने। चौके के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 15 रन स्कोरबोर्ड पर।
फिर एक बार यहाँ पर खेला पीछा किया जा रहा है, गेंद निकली है आउटफील्ड काफी तेज, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। टोटल पहुंचा है 1 छक्का 2 चौके लगातार। ओ फिर एक बार छोटी गेंद, फिर एक बार खेल दिया डीप पॉइंट की दिशा में 4 रन के लिए। आगे बढ़ता हुआ 23, 3 बाउंड्रीज 1 छक्का। यहाँ पर संदेश ठाकुर की गेंदबाजी पर सुहास पवार अब हाथ खोल रहे हैं अपने बल्लेबाजी में। बड़ा टोटल है लेकिन उसका पीछा कर रहे हैं दूसरा ओवर प्रगति पर, और अब प्रयास कर रही है HYS वॉरियर्स हसापुर की टीम 1 विकेट की। वो विकेट बड़ा विकेट होगा। ओ फिर एक बार, बार बार उसी क्षेत्र में फिर एक बार गेंद निकली सीमा पर 4 रन के लिए। आखिरी गेंद के ऊपर भी लगा है चौका, और 2 ओवरों का खेल अब समाप्त होता हुआ, और टोटल रन संख्या 27 रन 1 विकेट की नुकसान पर। गेंदबाजी में पहला बदलाव हमारे दूर वाले एंड से गेंदबाजी के लिए रघुनाथ उर्फ भाऊ कास्कर खुद के कोटे का पहला टीम के ओर से तीसरा ओवर, और सामना करने के लिए तैयार स्ट्राइक एंड पर साहिल कामड़ी। दोनों टीमों की अगर बात की जाए, पहले 2 ओवर में 19 रन थे हसापुर टीम के, और यहां पर है जो कि 27 रन अगरवाड़ा टीम के। फुल टॉस गेंद लो और फुल टॉस खेला मैदान के क्षेत्र में, डिप में खिलाड़ी तैनात, 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 28 रन स्कोर बोर्ड पर 116 रनों का जवाब दे रही है। एक तरफ से एक साझेदारी की आवश्यकता, तो दूसरी तरफ से अगर मैच में वापसी करनी है तो HY वॉरियर्स हसापुर टीम को एक विकेट की तलाश यहाँ पर बेकरार और कर रही है। ओ अच्छी गेंद, यॉर्कर लेग, बहुत बढ़िया सटीक यॉर्कर, सीधा पांव पैरों के ऊपर, और अपने बल्ले को नीचे लाए, सम्मान कर दिया इस गेंद का। बहुत तेज गेंद थी और जिसके चलते हुए शॉट नहीं बना। बहुत बढ़िया गेंदबाजी रघुनाथ की। और इस बार उठाकर खेला है, फंसा है स्ट्रोक, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और जिस विकेट की तलाश थी रघुनाथ ने वो धक्का दे दिया है। सुहास पवार बैक टू द पैविलियन, जिस विकेट के बारे में जिक्र कर रहे थे वो विकेट, और हर्षोल्लास देखिए हसापुर के खेमे में, क्योंकि लगभग आधा मैच उनके कब्जे में आ चुका है, ऐसी उनकी मनीषा है। और सुहास पवार बैक टू द पैविलियन।
से संदेश ठाकुर गेंदबाजी के मोर्चे पर अपने स्पेल का दूसरा ओवर टीम के ओर से, चौथा ओवर 3 ओवर में बने 30 रन, 2 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं हसापुर की टीम। उसमें एक प्राइस विकेट, 19 रन बनाकर वापस निकले श्वास। इस बार बल्ले के बाहरी किनारे को लगा, गली की क्षेत्र में गेंद को जब तक फील्ड किया जाता मुन्ना द्वारा 1 रन तब तक आसानी के साथ पूरा करते हुए 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 31 रन स्कोर बोर्ड पर। सुहास पवार के आउट होने के बाद वो बाउंड्री का फ्लो जो है वो रुक चुका है, वो बड़े रन बनने बंद हो चुके हैं और गेंदबाजी और तेज तर्रार धारदार नजर आते हुए मैदान पर। अब थोड़ा सा सिकंजा कसा है जो कि हसापुर टिप दे मैदान पर। अड़े बल्ले के साथ खेला, मिड विकेट की दिशा में तेजी के साथ अनिल वडर, आपको फिर एक बार बहुत बढ़िया फील्डिंग, थ्रो देखिए कितना सटीक, जहां विकेट कीपर वहां पर निकला, 1 रन और खाते में जोड़ता हो। बहुत ही शानदार प्रभावित फील्डिंग करी है अनिल वडर ने अपनी टीम के लिए इस मैदान पर। पूरी श्रृंखला की अगर बात की जाए तो संदेश ठाकुर फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, इस बार सामना करेंगे साहिल कामरी स्ट्राइक एंड पर। उठाकर खेलने की कोशिश, हवा में विकेट कीपर पहुंच नहीं पाए वहां पर। स्वप्निल मणि का बेहतरीन प्रयास था लेकिन उनसे दूर थी गेंद। 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 33 रन स्कोर बोर्ड पर। सिंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा फील्डिंग करने वाली हसापुर टीम को, क्योंकि उनको पता है सुहास पवार के आउट होने के बाद मैच 50% उनके तरफ झुक चुका है। यहां से अगर कोई बल्लेबाज बड़े शॉट लगाता है तभी मैच बन सकता है। और इस बार उठाकर खिलाए, खड़ी हो गई है गेंद रघुनाथ उर्फ भाऊ गेंद के नीचे और एक विकेट, विकेट नंबर 3। वापस जाना पड़ा है शुभम को, तीसरा विकेट, बैक टू द पेविलियन। गोवन आइकॉन आमिर गड़ेकर शुभम के आउट होने के बाद सामना करेंगे संदेश ठाकुर की गेंदबाजी का। ओ बाउजे, चलिए टाटा गुड बाय, खत्म, बैक टू बैक विकेट, बीच की डंडी गोल और एक विकेट। टोटल वहीं पर 33 रन स्कोर बोर्ड पर और विकेट निकले हैं 4। और अब मात्र नए बल्लेबाज सुशांत केरकर मैदान पर। ऑन हैट्रिक के ऊपर संदेश ठाकुर, आड़े बल्ले के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, मिड विकेट की दिशा में तेजी के साथ खिलाड़ी आते, 1 रन तो पूरा हो जाएगा, अपना खाता खोलेंगे, स्ट्राइक पर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। आधे ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और रन संख्या सिर्फ 34 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवरों का खेल अभी भी बाकी है, पीछा करना है 116 रनों का। अब 24 गेंदों में जीतने के लिए 82 रनों की और आवश्यकता। क्या होगा आने वाले समय में, कौन सी टीम जीतेगी? तो अभी भी 24 गेंदों में चाहिए 82 रनों की आवश्यकता। ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में और आवाज सुनते हुए अंग्रेजी में विवरण देने के लिए श्याम कलंगुटकर के पास। धन्यवाद।
Thank you, Jay Bosley, sir. This being the Dhruv over. Swing missed. Dot delivery. Too much to get. Too much to ask for right now. 116 runs required. Currently 34 for the loss of 4. There he goes. Nicely played through the gap. And that will move into the boundary for 4. Gets a boundary. Score moves to 38. False start. Match coming up next. Semi-final 1. Parsem to take on Pernem. Swing and a miss. Swing and a miss. Saish 11 Parsem to take on a creative circle Pernem. Nicely cut away, but straight to the fielder on the bounce to him. Will just be 1. Score moves on to 39. Talked about 116. Well, this 116 was like a mountain to chase. Short pitch delivery, and that will move into the boundary. Fast outfield. No matter how quick you are, the outfield is lightning quick. Score moves to 43. Lost 4 wickets early. Suhas Pawar, Prajay Merrick, Sahil Kamri in the middle, Shubham and Amir disappointing. 73 required. Swing again, missed again. Dot delivery to end the over. Just the 9th coming from it after completion of 5. It's 43 for 4. 43 for 4 after completion of 5 overs. Giant Fighters, Agarwada. From the commentary box end. Nicely played on the onside. Straight to Snehal. Will keep it to just 1. Single taken. Score moves to 44. That's clobbered, and clobbered many a mile for a maximum. Score moves to 50. Need plenty of those if they are in trying to get towards the target. $66 more required in exactly 16 deliveries. 16 deliveries and 66 to win. It's all about 11 maximums. You get 11 maximums, you are in. Currently just the first that has been hit. Again, this one has gone even further. Another maximum. Score moves on to 56 with that 6. Requiring 60 now in 15 deliveries. He's not a mug with the bat, Sahil.
Change of angle for the bowler. Bhau coming round the stumps. Again, this time powered down the ground and gone. Straight to Salil like Munna. Ekach Raja taking the catch. And it's 56 for 5. Sahil departs for 25 and invokes Lakshman. Was very expensive in his 2 overs. Nicely played, that's guided. Instead of the man at back to the point. Just one, gets off the mark with a single. Score moves on to 57. Requiring exactly 59 in the remaining deliveries that are left. 13 deliveries, 59 runs to win. Sushant has the capability. Swing missed. Dot delivery. Dot delivery to end the over. Requiring 59 in the remaining 12 deliveries. 2 overs left and 59 to get for Giant Fighters Agarwada. Helmerick into the attack. Nicely played. Straight to the man. And will pick up just one. Brings Raju back on strike. aka Sushant. Score moves on to 58. Nicely played. Oh, extra cover. Fielder coming in. Manoj Tandil. Is it? Seems like it. Another wicket falls. 7 wickets down of the Giant Fighters Agarwada. In fact, 8 wickets. Losing the plot at the moment. On a hat trick will be Snehal Marik.
Can Mahadev survive the hat-trick delivery? Definitely a Yorker is coming at the base of the stumps. Yes, he nicely defends it and will pick up one. Score moves to 59. What innings that was from Prathamesh Thakre, 64 of just 25 deliveries, 8 maximums in that. And then with the ball was absolutely magical. Leg spinner, and it is a dot ball. Another excellent delivery from Snehal, changing his pace. This time in the vacant onside region, will pick up one, and that will end the over. After completion of 7, it's 60. 60 for the loss of 7 after completion of 7 overs. 1 over remaining in this run chase of Giant Fighters Agarwada. And it's just mere formality left in this game. Will be bowled by Sahil that last over. Hitting the toe into the bat, no proper timing, will pick up just one down at deep square leg. Match coming up next, semi-final one. Saisha 11 Parsem to take on a Creative Circle Pernim. Then it will be the big one, semi-final 2. Ganpati Warriors Ozrim to take on the winner of this game, which is most likely, and it will be HYS Warriors Hasapur. What a fight back. Firstly against the Dhargar, Pritika Warriors Dhargar, and now against the Giant Fighters Agarwada. Again, this time played down the ground. Snehal will come in, picked it up and throw it back. Just be one. Last 3 deliveries in this innings. Toward the bat. Looking to again smack it on the onside. Missed out. Again, a slower delivery by Sahil. That's yet another dot ball. So last delivery coming up in this innings. Just on the brink of the victory margin. It will go down the ground. Salil Naik will stop it. And that will be it. Victory for the HYS Warriors Asapur. They win this game quite comfortably in the end, by a huge margin, to mark themselves and reach the semi-finals. They will be playing the second semi-finals against the Ganpati Warriors Ozrim. Meanwhile, we'll quickly head towards the presentation arena for the man of the match. Will be played between Saisha 11